ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تبریز خان کی حویلی پورے علاقے میں اپنی شان و شوکت کے باعث مشہور تھی۔ ہر کمرہ گویا کسی میوزیم کا نمونہ لگتا۔ قیمتی قالین، نایاب فانوس، سونے چاندی کے ڈیزائن کی بنی ہوئی اشیاء، مگر اس تمام چمک دمک کے بیچ ایک کونا ایسا بھی تھا جہاں ایک معمولی سے کمرہ نما کوٹھڑی تھی۔ وہ کمرہ اس حویلی کی ملازمہ ہینا کا تھا۔ ہینا کا وجود اگرچہ نوکرانی کا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ وہ کم گو مگر خوددار لڑکی تھی۔ وہ روزانہ حویلی کی صفائی کرتی، کام کاج نبھاتی اور پھر خاموشی سے اپنے کمرے میں لوٹ جاتی۔ لیکن اس کی خاموشی اکثر دوسروں کو کھٹکتی تھی، خاص طور پر تبریز کو۔ تبریز خان، جس کا غرور اور روب پورے علاقے میں مشہور تھا، وہ ایک ایسا شخص تھا جسے ہمیشہ اپنی مرضی کا عادی بنایا گیا، جس کے سامنے لڑکیاں خود کو خوش نصیب سمجھتی تھیں اگر وہ انہیں ایک نظر دیکھ لیتا۔ مگر آج وہ ایک ایسی لڑکی کے سامنے کھڑا تھا جو اس سے نفرت کرتی تھی۔ حویلی کے وسیع ڈرائنگ روم میں ماحول سخت اور بوجھل تھا۔ تبریز غصے سے ٹہل رہا تھا اور سامنے ہینا کھڑی تھی، جس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے، تمہارا قتل نہیں کرنا چاہتا جو تم اس طرح سے منہ پھاڑ کر رو رہی ہو۔ تبریز کی آواز میں بجلی گوندی۔ وہ چیخا تو پورا کمرہ دہل سا گیا۔ ہینا کے لرزتے ہوئے لبوں سے ایک ہی جملہ نکلا، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس کے آنسو قالین پر گر رہے تھے، مگر تبریز کی آنکھوں میں نہ رحم تھا نہ نرمی۔ وہ بس غصے سے اس کو گھورے جا رہا تھا۔ یہ وہی تبریز تھا جس کے اشارے پر کئی دل دھڑکتے تھے، مگر آج ایک عام سی نوکرانی اس کے سامنے کھڑی ہو کر بغاوت کر رہی تھی۔ تبریز نے تیز قدموں سے اس کے قریب آتے اس کے گرد بازوؤں کا حصار بنایا۔ اس کی سانسیں ہینا کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، تمہیں چاہے پسند ہو یا نہ ہو، شادی تم مجھ سے ہی کرو گی۔ ہینا نے آنکھیں بند کر لی۔ دل اس کے سینے میں بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ کل تک یہی آدمی اس پر غصہ نکالتا تھا، اس کے کاموں میں کیڑے نکالتا تھا، اور آج وہ اس کی مرضی کے خلاف اسے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں، اور تبریز جو چاہ لے اسے پا کر ہی رہتا ہے۔ تبریز کے لہجے میں وحشت تھی۔ ہینا کے لب کپ کپائے۔ اگر ہماری شادی ہو گئی تو لوگ کیا کہیں گے؟ سب کا شک یقین میں بدل جائے گا۔ تبریز نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لوگ تو ویسے بھی باتیں کرتے ہیں، مجھے پرواہ نہیں، مگر تمہارے رونے سے میرا دماغ جل رہا ہے۔ وہ اس کے بالکل قریب آ گیا۔ ہینا نے سہم کر رخ موڑ لیا۔ اسی لمحے وہ خود کو قید کی ایک ایسی دنیا میں محسوس کر رہی تھی جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہینا کو یاد آیا وہ دن جب وہ پہلی بار اس حویلی میں آئی تھی، ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی، جس کے والد ایک حادثے میں چل بسے تھے، ماں بیمار اور چھوٹے بہن بھائی بھوکے۔ ایسے میں ہینا کو کسی کا سہارا چاہیے تھا، اور یہ سہارا اس حویلی کے نوکری کے لیے دروازے نے دیا۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، مگر تبریز کی آنکھوں میں اکثر وہ ایک ناپسندیدہ وجود محسوس کرتی۔ وہ اسے حقارت سے دیکھتا، جیسے کوئی چیز غلطی سے اس کے گھر میں آ گئی ہو۔ تبریز کی زندگی میں دولت، طاقت اور عیش و آرام کے سوا کچھ نہیں تھا، مگر اندر ہی اندر وہ ایک تنہائی کا قیدی تھا۔ اس کا غصہ اس کی کمزوری کو چھپانے کے لیے تھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ہینا کی سچائی بھری آنکھیں اسے برداشت نہ ہوتی۔ ہینا، تبریز نے اس کا بازو پکڑ کر جھٹسے سے کہا، تمہیں میری بیوی بننا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ہینا نے اپنی آنکھوں میں آنسو پونچھتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا، میں کبھی آپ کو قبول نہیں کروں گی۔ تبریز کے چہرے کی رگیں تن گئی۔ قبول کرنے کی ضرورت نہیں، وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے، نفرت بھی۔ اس نے اس کا ہاتھ سختی سے چھوڑا اور پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، کل صبح تک تمہیں جواب دینا ہوگا، ہاں یا نہ،
और याद रखो, ना कहने का हौसला मत करना। ये कहकर वो दरवाजा जोर से बंद करके बाहर निकल गया। कमरा सन्नाटे में डूब गया। हिना जमीन पर बैठ गई और अपने दोनों हाथों से चेहरा छुपाकर रोने लगी। उसके दिल में खौफ और बेबसी की धुन छा गई थी। हवेली की पुरानी दीवारें जाने कितने राज समेटे हुए थी। नौकरानियों में सरगोशियां थी कि तबरेज के दिल पर एक ऐसा जख्म है जिसने उसे सख्त बना दिया है। कोई कहता था उसकी पहली मोहब्बत ने उसे धोखा दिया, और कोई कहता उसके खानदान की इज्जत को किसी ने ठेस पहुंचाई। मगर असल हकीकत सिर्फ तबरेज जानता था। हिना को अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी एक ऐसे तूफान में कदम रखने जा रही है जहां नफरत और मोहब्बत के बीच सरहद बहुत बारीक थी। सुबह की मध्यम किरणें हवेली की खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। परिंदों की चहचहाहट फिजा में जिंदगी की लहर पैदा कर रही थी। लेकिन हवेली के अंदर हिना के दिल में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। रात भर वो रोती रही। कमरे की ठंडी जमीन पर बैठे बैठे उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो सोच रही थी कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। एक नौकरानी की जिंदगी इतनी कीमती कब से हो गई कि तबरेज खान जैसे मगरूर शख्स को इससे शादी करने की जिद हो गई। नहीं, ये शादी मैं नहीं कर सकती, उसने खुद से कहा। मगर साथ ही उसके दिल में माँ और बहन भाइयों का ख्याल आया। वो सब इसी की कमाई पर जी रहे थे। अगर इसने तबरेज की बात मानने से इनकार कर दिया तो ना सिर्फ वो खुद बल्कि उसका खानदान भी मुसीबत में आ जाएगा। हवेली में नौकर और नौकरानियां मामूल के कामों में मसरूफ थे, मगर उनकी आंखों में तजस्सुस था। कल रात तबरेज की चीखने की आवाजें तकरीबन सबने सुन ली थी। लोग सरगोशियों में बातें कर रहे थे। सुना है खान साहब हिना से शादी करना चाहते हैं। पागल हो गए हैं क्या? एक नौकरानी से? शायद कोई मजबूरी है, वरना तबरेज खान को क्या कमी है? ये सरगोशियां हिना के कानों तक भी पहुंच रही थी। वो सबकी नजरें अपने ऊपर महसूस कर रही थी, जैसे सब उसका मजाक उड़ा रहे हों। उधर तबरेज अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर गरूर की लकीरें थी, मगर आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और दर्द छुपा था। वो अचानक माजी की यादों में खो सा गया। कुछ साल पहले उसकी जिंदगी में एक लड़की आई थी, महविश। वो उसकी पहली मोहब्बत थी। तबरेज ने उसे दिल की गहराइयों से चाहा, मगर महविश ने उसके पैसे और नाम का फायदा उठाकर इसे धोखा दिया और वो किसी और के साथ भाग गई। उस दिन के बाद तबरेज टूट गया था। उसका दिल सख्त हो गया था और उसने फैसला कर लिया था कि अब मोहब्बत जैसे लफ्ज को अपनी जिंदगी से निकाल देगा। उसके बाद वो और भी ज्यादा मगरूर और जालिम हो गया। लेकिन जब से हिना को देखा था, तबरेज के अंदर एक अनजानी कैफियत जागी थी। वो उसे चाहने लगा था, मगर अपने अंदाज में, जबरदस्ती हुक्म चलाने वाले अंदाज में, क्योंकि वो मोहब्बत के इजहार के नरम तरीके भूल चुका था। हिना शाम को हवेली के बाग में बैठी थी, हाथ में कपड़ों की टोकरी और दिल में तूफान। वो अपनी माँ के चेहरे को याद करने लगी। हिना बेटी, तुम ही तो हो हमारा सहारा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। माँ की बीमार आवाज कानों में गूंजने लगी और हिना की आंखें फिर भीग गईं। अगर वो इनकार कर देगी तो तबरेज ना सिर्फ उसे बल्कि उसके पूरे खानदान को नुकसान पहुंचा सकता है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? उसने दिल ही दिल में दुआ की। इसी दौरान हवेली की एक पुरानी मुलाजमा जरीना उसके करीब आई। जरीना 25 साल से इस घर में थी। वो सब राज जानती थी। जरीना ने आहिस्ता से कहा, बेटी, तुम्हारी आंखें सब कुछ कह रही हैं। खान साहब के फैसले से तुम खौफजदा हो? हिना ने सर झुका लिया। हाँ जरीना माँ, मैं इस शादी को कबूल नहीं कर सकती। जरीना ने गहरी सांस ली। खान साहब जो चाहते हैं वो कर गुजरते हैं, मगर याद रखो तबरेज के दिल में एक जख्म है। तुमसे उनकी जिद शायद मोहब्बत नहीं बल्कि कोई और बात है, मगर मुझे तो नफरत महसूस होती है उनसे। हिना रुहासी हो गई। जरीना ने हिना का हाथ थाम कर कहा, कभी कभी नफरत के पीछे भी मोहब्बत छुपी होती है, लेकिन ये बात वक्त ही साबित करेगा। इस दौरान हवेली के दूसरे कमरे में तबरेज के वालिद खान बहादुर आरिफ और उसका छोटा भाई फराज बैठे थे।
عارف خان نے غصے سے کہا، یہ لڑکا میری عزت خاک میں ملائے گا، ایک نوکرانی سے شادی کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ فراز نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، بھائی جان ضدی ہیں، جو فیصلہ کر لیں بدلتے نہیں۔ مگر خاندان والے کیا کہیں گے؟ عارف خان نے میز پر ہاتھ مارا کہ خان بہادر کے بیٹے نے عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ فراز نے مسکرا کر کہا، شاید بھائی کو محبت ہو گئی ہے۔ عارف خان نے تب کر جواب دیا، محبت؟ تبریز، وہ لڑکا محبت کو جانتا ہی نہیں، یہ بس ضد ہے، غرور ہے، اور میں اس ضد کو کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ رات کو ہنا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ تبریز کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ کل صبح تک جواب دینا ہوگا، ہاں یا نہ۔ اس نے اپنے دل سے سوچا، اگر میں ہاں کہہ دوں تو کیا میری زندگی تباہ ہو جائے گی؟ اور اگر نہ کہہ دوں تو میرا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ وہ دو راہوں پر کھڑی تھی۔ چاندنی رات کھڑکی سے جھانک رہی تھی۔ ہنا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ مجھے وہ راستہ دکھا جو میری عزت بھی بچا لے اور میرے خاندان کو بھی سہارا دے۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون؟ ہنا نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ میں ہوں، تبریز۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم رک سی گئی۔ ہنا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ رات بھر کی جاگ نے اس کی آنکھوں کے گرد مزید ہلکے گہرے کر دیے تھے۔ دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا آج میری زندگی کا فیصلہ ہو جائے گا؟ کل رات تبریز کے الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ کل صبح تک جواب دینا ہوگا، ہاں یا نہ۔ وہ جانتی تھی کہ نہ کہنا اس کے بس میں نہیں تھا، مگر ہاں کہنا اس کی روح کو کچل دینے کے مترادف تھا۔ دروازہ زور سے کھلا۔ تبریز اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی وحشت اور ضد کی جھلک تھی۔ تو فیصلہ کر لیا تم نے؟ ہنا کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ تبریز نے قریب آ کر کہا، چپ کیوں ہو؟ میں نے جواب مانگا ہے، ہاں یا نہ۔ ہنا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ مجھے کیوں مجبور کر رہے ہیں؟ میں نے کہا نا، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ تبریز کی رگیں تن گئیں اور وہ چیخ کر بولا، میری بات کو انکار کرنے کی ہمت کیسے ہوئی تم میں؟ وہ ایک دم جھک کر اس کے قریب آیا۔ سن لو ہنا، یہ ضد نہیں ہے، یہ فیصلہ ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو، تم میری ہو۔ اسی دوران کمرے کے باہر کھڑے خان بہادر، عارف اور فراز نے سب سنا۔ عارف خان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ لڑکا ہماری عزت مٹی میں ملا دے گا، میں ہرگز اس شادی کو نہیں ہونے دوں گا۔ فراز نے طنزیہ انداز میں کہا، ابا جان اگر بھائی نے ضد پکڑ لی تو؟ عارف خان نے سرد لہجے میں کہا، تو پھر مجھے اپنی عزت بچانے کے لیے سخت قدم اٹھانا پڑے گا۔ تبریز کے جانے کے بعد ہنا اپنے آپ کو کمرے کے کونے میں سمیٹ گئی۔ وہ خود کو قیدی محسوس کر رہی تھی۔ کیا میں واقعی اس شخص کی بیوی بننے جا رہی ہوں جس سے میں دل سے نفرت کرتی ہوں؟ وہ اپنے آنسو پونچھتی دل میں سوچتی رہی، لیکن اگر انکار کروں تو ماں اور بہن بھائی کہاں جائیں گے؟ اسی وقت زرینہ اس کے پاس آئی۔ بیٹی ہمت رکھو، کبھی کبھی وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، تمہارے صبر میں ہی تمہاری طاقت ہے۔ ہنا نے زرینہ کی طرف دیکھ کر کہا، کیا وقت واقعی بدل سکتا ہے یا یہ قید ہمیشہ کے لیے ہے؟ زرینہ نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یاد رکھو خان صاحب کے دل میں جو سختی ہے وہ کسی پرانے زخم کی وجہ سے ہے، شاید تم ہی وہ مرہم بن سکو۔ دوپہر کو تبریز نے سب نوکروں کو حویلی کے بڑے ہال میں اکٹھا کیا۔ ہنا کو بھی وہاں بلایا گیا۔ سب کی نظریں اسی پر تھیں۔ تبریز بلند آواز میں بولا، آج سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ ہنا میری ہونے والی بیوی ہے۔ پورا ہال سرگوشیوں سے گونج اٹھا۔ کوئی حیران ہوا اور کوئی شوق میں تھا۔ ہنا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، آپ مجھے کیوں رسوا کر رہے ہیں؟ تبریز نے غرور سے جواب دیا، رسوائی تب ہوتی اگر میں تمہیں چھوڑ دیتا، مگر اب تمہیں عزت دوں گا، میرا نام دوں گا۔ اسی لمحے عارف خان غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے، یہ شادی ہرگز نہیں ہوگی۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔
तबरेज ने अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब्बा जान, ये फैसला मैंने कर लिया है और तबरेज खान का फैसला कोई नहीं बदल सकता। उस रात हिना ने पहली बार सोचा कि शायद तकदीर वाकई उसका रास्ता बदलने जा रही है। वो चाहे या ना चाहे ये शादी होने वाली थी, लेकिन उसके दिल में सवाल था, क्या वाकई एक नौकरानी इस अमीरजादे की बीवी बन सकेगी या ये शादी उसके लिए सजा साबित होगी? दूसरी तरफ तबरेज अपने कमरे में बैठा था। वो खुद भी अंदर से बेचैन था। उसने खुद से कहा, ये जिद नहीं है, ये कुछ और है, क्योंकि मैं उसे खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका ये फैसला ना सिर्फ उसकी और हिना की जिंदगी बल्कि पूरे खानदान की तकदीर बदलने वाला है। हवेली का माहौल आज कुछ और ही था। बड़े हॉल में होने वाला कल का ऐलान पूरे इलाके में फैल गया था। एक अमीर ज़ादा खान का बेटा एक नौकरानी से शादी करने जा रहा है। यह खबर हर जबान पर थी। कई लोग हैरत में थे, कई तंज कर रहे थे, तो कई हमदर्दी के जज्बे जागे हुए थे। खान बहादुर आरिफ का गुस्सा आसमान को छू रहा था। वो अपने कमरे में चक्कर काट रहे थे, जबकि फराज एक कोने में बैठा शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ ये तमाशा देख रहा था। आरिफ खान ने दरवाजा जोर से खोला और तबरेज के कमरे में दाखिल हुआ। तबरेज, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? खानदान वाले हमें हंसने का मौका देंगे। एक नौकरानी को हमारी बहू बनाने जा रहे हो तुम? तबरेज ने पुरसकून मगर सख्त लहजे में कहा, अब्बा जान, मैंने फैसला कर लिया है, हिना मेरी बीवी बनेगी। फैसला? आरिफ खान ने तंजन कहा, फैसले खानदान के बुजुर्ग करते हैं, जिद्दी बच्चे नहीं। तबरेज ने बाप की आंखों में देखकर कहा, मैं बच्चा नहीं हूं, तबरेज खान हूं, और जो फैसला करता हूं वो बदलता नहीं। आरिफ खान ने मुट्ठियां भींच ली। याद रखो, अगर ये शादी हुई तो मैं तुम्हें अपनी विरासत से आग कर दूंगा। तबरेज के चेहरे पर लम्हा भर को तासुर बदला, मगर फिर वो गरूर से मुस्कुरा दिया। आप चाहे सब कुछ छीन लें, मगर हिना को नहीं। दूसरी तरफ हिना अपने कमरे में बैठी रो रही थी। हर तरफ से लोग उस पर नजरें गाड़ रहे थे। कुछ नौकरानियां उससे हसद करने लगी और कुछ उसके बारे में बातें बना रही थी। वो तो नौकरानी है, कल तक हमारे साथ काम करती थी और आज खान की बीवी बनेगी। क्या किस्मत है उसकी। किस्मत? ये बर्बादी है। खान साहब जैसे आदमी से शादी आसान नहीं। हिना ने यह सब सुना तो उसका दिल मजीद डूब गया। या अल्लाह, मैं कहां फंस गई हूं। फराज अपने कमरे में बैठा था। वो तबरेज का छोटा भाई था, मगर उसके दिल में हसद की आग भड़क रही थी। वो जानता था कि अगर तबरेज ने यह शादी कर ली तो पूरा खानदान बदनाम हो जाएगा, और यही मौका है कि वो अपने भाई को नीचा दिखा सके। उसने जरीना को बुलाया। जरीना, तुम हिना के करीब हो ना? जरीना ने मोहताज लहजे में कहा। जी छोटे खान। फराज ने चालाकी से कहा, उसे समझाओ कि यह शादी उसकी बर्बादी है। अगर वो खुद ही इनकार कर दे तो मेरा भाई भी जिद छोड़ देगा। जरीना ने कहा, छोटे खान, वो लड़की बेबस है, इनकार करेगी तो तबरेज खान उसे माफ नहीं करेंगे। फराज के लबों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। तो फिर ऐसा करते हैं, उसे इनकार पर मजबूर कर देते हैं। जरीना अपने कमरे में बैठी सोचती रही। वो जानती थी कि फराज चालाक और खतरनाक है। उसकी बात मानना हिना के लिए नुकसानदेह हो सकता है, मगर अगर वो खामोश रही तो हालात खुद ब खुद हिना के खिलाफ हो जाएंगे। बेचारी लड़की, किस्मत उसे कहां ले आई है। जरीना ने आ भरी। रात को तबरेज खुद हिना के कमरे में गया। दरवाजा खोलकर अंदर आया तो हिना सहम गई। अब फैसला सुनाने का वक्त आ गया है। तबरेज ने सर्द लहजे में कहा, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूं, मुझे मजबूर ना करें। हिना की आंखों में आंसू आ गए। तबरेज ने उसके करीब आकर कहा, तुम समझ क्यों नहीं रही? ये जिद नहीं है, ये मेरी जरूरत है। तुम मेरी हो और मैं किसी को तुम पर हक नहीं दूंगा। लेकिन मैं आपको दिल से कभी कबूल नहीं कर सकूंगी। हिना ने रोते हुए कहा।
तबरेज के चेहरे पर एक लम्हे को दुख आया, लेकिन फौरन उसने सख्ती ओढ़ ली। वक्त के साथ तुम सब मान जाओगी, अभी तुम्हें मेरी मर्जी माननी होगी। ये कहकर वो कमरे से निकल गया, लेकिन उसके जाते ही हिना का दिल और ज्यादा बोझल हो गया। अगले दिन खानदान के बड़े लोग हवेली में इकट्ठे हुए। आरिफ खान ने सबके सामने तबरेज के फैसले की मुखालफत की। ये शादी हमारी इज्जत के खिलाफ है, नौकरानी हमारी बहू नहीं बन सकती। सब रिश्तेदार भी उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। आप ठीक कहते हैं खान बहादुर, ये तो खानदान की तौहीन है, तबरेज को समझाएं। तबरेज ने सबकी बातें सुनी और पुरएतमाद लहजे में कहा, आप सब चाहे कुछ भी कह लें, ये मेरा फैसला है और मेरी शादी हिना से ही होगी। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। रात को हिना ने नमाज के बाद हाथ उठाए, या अल्लाह मुझे वो रास्ता दिखा जो इज्जत वाला हो, मुझे जुल्म से बचा ले, मेरे दिल को सुकून दे। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो दुआ में डूबी रही जैसे अल्लाह ही उसकी आखिरी उम्मीद हो। उसी रात फराज ने अपनी चाल चल दी। उसने हिना के कमरे में एक खत भिजवा दिया। खत में लिखा था, अगर तुम ये शादी करती हो तो तुम्हारी माँ और बहन भाइयों को नुकसान पहुंच सकता है। बेहतर है कि तुम तबरेज खान के सामने इनकार कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। खत पढ़कर हिना के हाथ कांपने लगे। ये किसने लिखा है? क्या वाकई मेरे घर वाले खतरे में हैं? वो खौफ में डूब गई। अब उसे लगने लगा कि शादी के इनकार के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। फराज की साजिश ने हिना को एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया था जहां उसके पास कोई आसान रास्ता बाकी नहीं रहा था। खत पढ़ने के बाद उसका दिल कांप रहा था। अगर तुम ये शादी कर लो तो तुम्हारी माँ और बहन भाई खतरे में हैं। इनकार करो वरना अंजाम बुरा होगा। हिना ने खत को दोबारा देखा। आंखों से आंसू बहते गए और दिल धड़क रहा था। ये किसने लिखा? फराज या कोई और? उसके जहन में खौफ और शक की लकीरें खींच गई थी। उसी दौरान तबरेज अपने कमरे में बैठा था। वो सोच रहा था कि कल का फैसला आने वाला है। उसकी जिद और मोहब्बत के जज्बात एक दूसरे से टकरा रहे थे। वो दिल ही दिल में कह रहा था, ये लड़की मेरी होगी, चाहे वो खुद माने या ना माने। तबरेज के लिए ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि एक इम्तिहान था। उसे यकीन था कि हिना के दिल में किसी न किसी तरह मोहब्बत छुपी हुई है, बस वक्त चाहिए। हिना ने अपने कमरे में पर्दे खोले और बाहर का मंजर देखा। बाग में हल्की हवा चल रही थी, लेकिन दिल में तूफान और भी शदीद था। अगर मैं इनकार कर दूं तो शायद घर वाले महफूज रहें, लेकिन मेरा दिल तो तबरेज की जिद और मोहब्बत के दरमियान फंस जाएगा। उसने अपनी माँ और बहन भाइयों को याद किया और दिल की धड़कनें और तेज हो गई। या अल्लाह मुझे फैसला करने की हिम्मत दे। फराज ने अपनी साजिश को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने हवेली के अंदर एक छोटा सा हादसा प्लान किया ताकि हिना के खौफ और दबाव में इजाफा हो। उसने नौकरों को सब कुछ बता दिया और कहा, अगर हिना खौफजदा हो गई तो वो इनकार करने पर मजबूर हो जाएगी। तबरेज भी अपना गुरूर छोड़ देगा। जरीना, जो हिना की मदद करना चाहती थी, इस मंसूबे को सुनकर खौफजदा हुई। छोटे खान, ये खतरनाक है, आप बहुत आगे जा रहे हैं। फराज ने मुस्कुराकर कहा, यही तो असल खेल है। शाम के वक्त जब हिना बाग में टहल रही थी, अचानक एक गमले का पौधा गिरने वाला था। हिना ने उसकी तरफ देखा और कदम पीछे हटाए, मगर गमला थोड़ा सा छूकर जमीन पर गिर गया। हिना का दिल धड़क रहा था और वो कांप रही थी। उस वक्त फराज दूर से मुस्कुरा रहा था, जैसे उसका मंसूबा कामयाब हो गया हो। हिना को खौफ ने घेर लिया। ये सब क्या हो रहा है? क्या वाकई ये सब मेरी जिंदगी का अंजाम है? तबरेज ने जब ये हादसा सुना तो फौरन बाग की तरफ दौड़ा। उसने देखा कि हिना कांप रही थी और खौफ से उसके आंसू बह रहे थे। हिना, तुम ठीक हो? हिना ने सर हिलाया, मगर कुछ कहने की हिम्मत ना थी। तबरेज ने उसे अपने बाजू में लिया। दिल की धड़कनें तेज थी और आंखों में जज्बात का तूफान था। मैंने कहा था तुम मेरी हो, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। हिना ने आंखें बंद कर ली।
खौफ और मोहब्बत के दरमियान फंस गई। उसी दौरान जरीना ने हिना को बताया, बेटी ये सब फराज की साजिश है। वो चाहता है कि तुम इनकार कर दो और तबरेज अपना गुरूर छोड़ दे। तुम्हें समझना होगा, तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है। हिना ने हैरत से पूछा, तो ये सब वाकई मेरी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि मुझे दबाने के लिए था? जरीना ने सर हिलाया। हाँ बेटी, लेकिन अब वक्त है कि तुम खुद फैसला करो। रात को हिना ने अपने कमरे में दराज होकर आंखें बंद की और दिल ही दिल में फैसला किया, मैं खौफ के आगे नहीं झुकूंगी। मैं अपनी इज्जत और खानदान दोनों के लिए लड़ूंगी, चाहे तबरेज के गरूर और फराज की साजिश कुछ भी हो। मैं इनकार करने का हक रखती हूं। ये सोचकर उसके दिल में हौसला जागा। वो जानती थी कि कल का दिन फैसला कुन होगा। सुबह होते ही हिना ने अपने दिल की ताकत को जमा किया। वो जानती थी कि अब वो या तो तबरेज के सामने इनकार करेगी या हाँ कहकर अपनी जान और इज्जत का सौदा करेगी। तबरेज ने फिर से हॉल में सबको जमा किया और हिना के सामने खड़ा हुआ। तो अब जवाब दो, हाँ या ना। हिना ने एक लम्हे के लिए सब कुछ देखा, तबरेज के जज्बात, खानदान के खौफ, फराज की साजिश और अपने दिल की धड़कनें। फिर उसने मजबूत आवाज में कहा, मैं इनकार करती हूं। हॉल में सन्नाटा छा गया। तबरेज की आंखों में गुस्सा और हैरत की मिली जुली कैफियत थी। इनकार? तुमने वाकई हिम्मत की? हिना ने सर बुलंद किया। हाँ, मैं अपनी इज्जत के लिए इनकार करती हूं, चाहे सब कुछ खतरे में पड़ जाए। तबरेज के दिल में एक अजीब सा धचका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि हिना इनकार करेगी, मगर उसके गरूर के पीछे छुपी मोहब्बत भी जाग उठी। वो खामोश हुआ और दिल ही दिल में सोचा, ये लड़की वाकई मजबूत है। शायद यही वजह है कि मैं इसे चाहता हूं। हॉल में वो सन्नाटा छाया हुआ था जो वक्त के साथ साथ बोझल सा महसूस हो रहा था। हिना ने जुर्रत दिखाकर इनकार किया और उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी, मैं इनकार करती हूं। तबरेज खड़ा था, आंखों में गुस्सा लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सा तलातुम था। गरूर ने उसके लबों पर सख्ती बिठा दी थी, मगर दिल की धड़कनें उसे धकेल रही थी कि यह लड़की कुछ खास है। तबरेज के दिल में जज्बात का तूफान उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि हिना इतनी हिम्मत दिखाएगी। वो अपने कमरे में चला गया और आ भरी। ये लड़की, ये इनकार, ये हकीकत मेरे लिए नाकाबिले कबूल है, मगर शायद यही वक्त है कि मैं खुद को समझूं या फिर उसे अपनी मोहब्बत के लिए मजबूर करूं। उसकी नजरें खिड़की से बाहर बाग की तरफ टिक गई। हर शाख, हर पत्ते में हिना की तस्वीर नजर आ रही थी। तबरेज को अंदाजा था कि वो सिर्फ इनकार के बावजूद उसके दिल में कुछ जगह बना चुकी है। दूसरी तरफ हिना अपने कमरे में बैठी थी। दिल का तूफान और खौफ उस पर छाया हुआ था। उसने सोचा, मैंने सही फैसला किया, मगर मैंने तबरेज के जज्बात को चोट पहुंचा दी। क्या मैं गलत कर रही हूं? उसके दिल में मोहब्बत और नफरत की मिली जुली कैफियत थी। वो जानती थी कि तबरेज की मोहब्बत और गुरूर के बीच एक दास्तान छुपी हुई है, मगर वो खुद को बचाने के लिए मजबूत रहने की कोशिश कर रही थी। फराज ने इनकार के बाद खुशी महसूस की, मगर वो जानता था कि तबरेज के गुरूर को छूने के लिए मजीद चाल चलनी होगी। उसने नौकरों को फिर से हिदायत दी, अगर हिना खौफजदा हो जाए तो वो दोबारा इनकार करेगी और तबरेज का गरूर उसे और करीब ले आएगा। जरीना ने उसे खबरदार किया, छोटे खान, आप हद से आगे जा रहे हैं, ये सब खतरनाक है। फराज ने मुस्कुराकर कहा, खतरा ही खेल का हिस्सा है। तबरेज ने खुद को काबू में रखने की कोशिश की। उसने फैसला किया कि वो हिना के दिल को अपनी मोहब्बत से बदल कर दिखाएगा, चाहे ये वक्त ले, चाहे मुश्किलें आए। उसने हिना के कमरे के बाहर खड़े होकर कहा, हिना, तुमने इनकार किया, मगर ये बात याद रखो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम चाहो या ना चाहो, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी। हिना ने कांपते हुए कहा, मैं नहीं कर सकती।
तबरेज ने करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। ये तुम्हारी नफरत है जो मोहब्बत में बदल जाएगी वक्त के साथ। आरिफ खान और दीगर खानदान वाले हॉल में बैठे तबरेज और हिना की हर हरकत को देख रहे थे। ये लड़की वाकई हिम्मत वाली है, आरिफ खान ने आह भरी। हिना रात को अपने कमरे में बैठी दिल में फिक्र और खौफ लेकर सोच रही थी, क्या मैं वाकई अपनी जिंदगी तबरेज के हवाले कर दूं या फिर मुस्तकिल तौर पर इनकार करके खुद और खानदान को बचा लूं। उसने अपने दिल की सुनने की कोशिश की, मगर हर तरफ अंधेरा और खौफ था। तबरेज बाग में खड़ा हिना को देख रहा था। उसने खुद से कहा, ये लड़की मेरी जिंदगी में आई है और मैं इसे जाने नहीं दूंगा। चाहे वक्त लगे, चाहे उसे नफरत हो, मैं उसे अपनी मोहब्बत से कायल करूंगा। उसने दिल ही दिल में हिना के लिए एक वादा किया, तुम चाहो या ना चाहो, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारे दिल तक पहुंच कर रहूंगा। अगले दिन हवेली में एक इज्तिमा हुआ। खानदान वाले और नौकर सब मौजूद थे। तबरेज ने कहा, हिना, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने दिल का फैसला जाहिर करो। हिना ने दिल ही दिल में सोचा, फिर मजबूत आवाज में कहा, मैं अपने दिल के मुताबिक फैसला करूंगी। तबरेज की नजरें उस पर थीं और दिल की धड़कनें तेज हो गई। तुम इनकार करो या हां, तुम्हारा फैसला मेरी मोहब्बत को बदल नहीं सकता। ये अल्फाज हिना के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा कर गए। मोहब्बत और नफरत के दरमियान एक बार फिर टकराव हुआ। रात को हिना ने दुआ की, या अल्लाह, मुझे वो रास्ता दिखा जो दिल और इज्जत दोनों के लिए दुरुस्त हो। मुझे हौसला दे कि मैं खौफ के आगे ना झुकूं। तबरेज बाग में बैठा चांदनी रात में हिना की तस्वीर देख रहा था। दिल में मोहब्बत और गरूर का तूफान था। उसने सोचा, ये लड़की वाकई खास है और मैं इसे कभी जाने नहीं दूंगा। सुबह की रोशनी हवेली के बड़े हॉल में फैल रही थी। आसमान पर हल्की धुंध छाई हुई थी, लेकिन अंदर का माहौल इतना गर्म और कशीदा था कि जैसे हर लम्हा तूफान उठने वाला हो। हिना के दिल में खौफ और हिम्मत दोनों की मिली जुली कैफियतें थीं। कल रात के बाद उसका एतमाद बढ़ा था, मगर फराज की साजिश और तबरेज के गुरूर ने उसके दिल को फिर भी दबा रखा था। फराज कमरे में बैठा मंसूबे बना रहा था। उसने नौकरों को हिदायत दी, आज मैं ये देखना चाहता हूं कि ये लड़की कितनी हिम्मत दिखा सकती है। अगर वो इनकार करे तो तबरेज का गरूर टूट जाएगा और सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। जरीना ने मोहतात लहजे में कहा, छोटे खान, ये खतरनाक खेल है। आपको अंदाजा है कि हिना और तबरेज के दिल में जज्बात किस हद तक जा चुके हैं। फराज ने मुस्कुराकर कहा, खतरा ही असल खेल है और अब खेल शुरू होता है। तबरेज बाग में खड़ा था, हिना भी वहां पहुंची। दोनों की नजरें एक दूसरे पर थीं, लेकिन खामोशी में हजारों अल्फाज छुपे हुए थे। तबरेज ने सर्द लहजे में कहा, कल के बाद तुमने इनकार किया, आज फिर से सोच लो। हिना ने कांपते हुए कहा, मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं नहीं कर सकती। तबरेज के चेहरे पर गुस्सा और हैरत की मिली जुली कैफियत थी। तुम वाकई हिम्मत कर रही हो? हिना ने सर बुलंद करके जवाब दिया, हाँ, और मैं खौफ के आगे नहीं झुकूंगी। तबरेज ने कदम आगे बढ़ाया और हिना के करीब आकर कहा, तुम्हारे इनकार के बावजूद मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत दिखाकर कायल कर लूंगा। चाहे तुम नफरत करो या मोहब्बत, तुम मेरी हो। हिना ने दिल ही दिल में सोचा, ये शख्स वाकई खतरनाक है, मगर मैं अपनी इज्जत और खानदान के लिए मजबूत रहूंगी। तबरेज की नजरें उसके दिल की गहराइयों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी और हिना ने पहली बार महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदलने लगा है। फराज ने नौकरों को हवेली के सहन में एक छोटा सा हादसा प्लान करने को कहा ताकि हिना खौफजदा हो जाए। उसने कहा, बड़ा वाला गमला टेरेस पर रखो और जैसे ही हिना उसके नीचे आए गमला उस पर गिरा देना। और एक नौकर ने ऐसा ही किया। हिना वहां से गुजर रही थी कि नौकर ने गमला नीचे गिरा दिया। तबरेज ने फौरन उसे पकड़ा और बचा लिया। हिना के दिल में खौफ और मोहब्बत के जज्बात एक साथ आ गए।
हिना ने तबरेज की गिरफ्त से अपना आप छुड़ाया और भागती हुई कमरे में चली गई। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि वो जान चुकी थी कि तबरेज उससे सच्चा प्यार करता है, लेकिन हिना का दिल अजीब कश्मकश में फंसा हुआ था। जरीना ने हिना को समझाया, बेटी ये सब फराज की साजिश है, उससे डरकर इनकार करने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपने दिल की सुननी होगी। हिना ने सर हिलाया, मगर दिल में एक नया सवाल था, क्या मैं वाकई उससे मोहब्बत करने लगी हूं? फराज के दिल में खुशी थी कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, मगर वो जानता था कि तबरेज का दिल भी एक अनजानी ताकत के ज़ेरे असर जा रहा है। तबरेज हिना के कमरे में आया और हिना के हाथ थाम कर कहा, वक्त के साथ तुम सब समझ जाओगी, तुम्हारी नफरत भी मोहब्बत में बदल जाएगी, मैं ये साबित करके रहूंगा। हिना के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। वो खौफ और मोहब्बत के दरमियान फंस गई। पहली बार उसने महसूस किया कि शायद तबरेज के जज्बात भी हकीकी हैं। रात को हवेली के बाग में दोनों बैठे थे। चांदनी रोशनी में उनके साए लंबे और कशीदा लग रहे थे। तबरेज ने नरम लहजे में कहा, हिना, अगर तुमने अपने दिल की सुन ली तो सब कुछ आसान हो जाएगा, मैं तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हिना ने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया और दिल ही दिल में सोचा, शायद यही वक्त है कि मैं अपने दिल की सुनूं, चाहे खौफ हो या मोहब्बत। ये लम्हा दोनों के लिए एक नया आगाज साबित होने वाला था। हिना बाग में चल रही थी, दिल में एक अजीब सा खौफ और हिम्मत के मिले जुले एहसास। वो जानती थी कि तबरेज के जज्बात हकीकत पर मबनी है, लेकिन फराज की साजिश ने उसे मुसलसल खौफजदा रखा। तबरेज बाग में खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसने खुद से कहा, अब वक्त आ गया है कि हिना के दिल तक पहुंचूं, चाहे ये लम्हा तवील हो, लेकिन मैं उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर रहूंगा। उसने हिना के सामने कदम रखा और नरम लहजे में कहा, हिना, मैं जानता हूं कि तुम्हारे दिल में खौफ है, लेकिन ये वक्त है कि हम एक दूसरे की हकीकत को समझें। हिना ने सर हिलाया, मगर आंखों में खौफ की झलक अब भी थी। मैं नहीं जानती कि मैं क्या महसूस करती हूं। तबरेज ने उसके हाथ पकड़े और दिल की गहराई से कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये मोहब्बत है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे समझो। हिना ने पहली बार अपने दिल की गहराई में झांका। वो महसूस कर रही थी कि तबरेज की मोहब्बत सिर्फ गरूर नहीं, बल्कि एक सच्ची कशिश भी है। दिल के अंदर खौफ और मोहब्बत की मिली जुली कैफियत जाग रही थी। तभी तबरेज की नजर हवेली की छत पर गई, जहां एक साया हाथ में गन लेकर हिना को टारगेट कर रहा था। तबरेज चिल्लाया, हिना हट जाओ, और साथ ही उसने हिना पर छलांग लगा दी। हिना को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। बस एक गोली चलने की आवाज आई थी और वो गिर पड़ी थी और उसके ऊपर तबरेज का जिस्म झूल गया। हिना को लगा कि गोली उसको लगी है, लेकिन जब उसको तबरेज के जिस्म में कोई हलचल महसूस ना हुई तो वो चीखी, तबरेज उठो, क्या हुआ तुम्हें? जब उसकी नजर कपड़ों पर पड़ी तो उसकी जान निकल गई। उसके कपड़े खून से लथपथ थे। गोली की आवाज सुनकर सब हवेली वाले और नौकर भागे हुए आए। फराज भी भागा भागा आया। तब हिना चीखी कि कोई उठाकर ले जाओ मेरे तबरेज को अस्पताल। फराज आगे बढ़ा और तबरेज के जिस्म को उठाकर भागा। उसको गाड़ी में डाला और अस्पताल की तरफ गाड़ी भगाई, जबकि हिना पैदल ही अस्पताल की तरफ दौड़ी। जब वह अस्पताल पहुंची तो फराज ऑपरेशन थिएटर के बाहर सर पकड़ कर बैठा था। हिना चीखी, कहाँ है मेरा तबरेज? वो ठीक तो है ना? जवाब में फराज ने कहा, उसको ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं, उसके सर पर गोली लगी है। वो बच तो जाएगा ना? अगर उसको कुछ हुआ तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मेरी वजह से वो आज जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। मैंने उसके सच्चे प्यार पर भरोसा नहीं किया। या अल्लाह रहम कर, मेरे तबरेज को मेरी उम्र भी लगा दे। तबरेज मेरी जान, क्यों किया तुमने ऐसा?
मेरी मौत को गले लगा लिया। तुमने इतना प्यार किया मुझसे और मैंने तुम्हें मौत की तरफ धकेल दिया। तुम बस मुझे छोड़कर मत जाना, मैं मर जाऊंगी तबरेज। वो जज्बात में खुद से बातें कर रही थी, जबकि फराज हाथ उठाकर अल्लाह से अपने भाई की जिंदगी की दुआ कर रहा था। तभी सारे हवेली वाले भी आ गए। सबकी आंखों में आंसू और सवाल थे कि तबरेज ठीक है। दूसरी तरफ नौकरानी शक भरी नजरों से फराज को देख रही थी, जबकि फराज आंखों आंखों में उसको इशारा कर रहा था कि अपना मुंह मत खोलना। आरिफ खान भी इंतहाई परेशानी के आलम में टहल रहा था और दिल में अपने बेटे की जिंदगी की दुआ कर रहा था। तब आरिफ शाह की आवाज गूंजी, हमने भी अच्छा नहीं किया तबरेज के साथ। उसकी मोहब्बत को हमने हैसियत के तराजू में तोला। अगर तबरेज को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा, और जिसने भी मेरे बेटे पर गोली चलाई है उसका गला मैं अपने हाथों से दबाऊंगा। जबकि हिना गश खाकर गिर पड़ी, तब फराज ने उसको संभाला और डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने चेक किया और बोला, कोई घबराने की बात नहीं, परेशानी से पैनिक अटैक हुआ है। मैं इंजेक्शन लगा देता हूं, 1 घंटे में ठीक हो जाएंगी। इतने में ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और डॉक्टर परेशान हालत में बाहर आया और आरिफ खान से बोला, खान साहब, तबरेज की जान तो अल्लाह ने बचा ली, लेकिन गोली उसके दिमाग में लगी है। गोली तो हमने निकाल दिया है, लेकिन अगर 1 घंटे में उसको होश नहीं आया तो मुझे खौफ है कि वो कोमा में ना चला जाए या अपनी याददाश्त ना खो बैठे। आरिफ खान के चेहरे पर परेशानी आ गई। फिर वो डॉक्टर से मुखातिब हुआ, डॉक्टर साहब, आप कोशिश करें कि ऐसा कुछ ना हो। मेरा जवान बेटा है। या तो आप किसी और स्पेशलिस्ट को बुला लें, पैसों की फिक्र ना करें। डॉक्टर ने गौर से आरिफ खान को देखा और गोया हुआ, खान साहब, मैं स्पेशलिस्ट ही हूं और पिछले बहुत सालों से काम कर रहा हूं। ऐसी हालत में सिर्फ दुआ काम आ सकती है, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। जो हमारे बस में था हमने कर दिया। आप नाउमीद ना हो, अल्लाह से दुआ करें, वही बेहतर करेगा। इतने में नर्स आई और बोली, आपके पेशेंट को होश आ गया है, वो अब बिल्कुल ठीक है। अभी नर्स ने इतना ही कहा था कि हिना भागती हुई कमरे से बाहर आई और आरिफ खान से सवाल किया, मेरा तबरेज कैसा है, ठीक तो है, उसको होश आया? आरिफ खान ने दुखी लहजे में कहा, बेटा आप दुआ करो। उसके लिए डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर उसको 1 घंटे में होश नहीं आया तो या तो वो कोमा में जा सकता है या फिर अपनी याददाश्त खो सकता है। हिना ये सुनकर साकित हो गई और अपने आप से बोली, ऐसा नहीं हो सकता, उसको होश में आना पड़ेगा, और किसी के लिए नहीं तो अपनी हिना के लिए। ये कहते ही वो भागी और अस्पताल में नमाज पढ़ने वाली जगह पर जाए नमाज बिछाकर अल्लाह से दुआ करने लगी, अल्लाह मेरे तबरेज को कुछ मत करना, उसको मेरे लिए ठीक कर दे। मैं सारी उम्र सजदे में पड़ी रहूंगी। अल्लाह मेरी दुआ सुन ले, मुझ पर रहम कर, मेरे तबरेज को सेहत अता फरमा। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया और इंतहाई दुख से बोला, मुझे अफसोस है खान साहब, तबरेज कोमा में चला गया है। आरिफ खान ने डॉक्टर से पूछा, क्या वो कोमा से बाहर आएगा या नहीं? जवाब में डॉक्टर ने कहा, अल्लाह जानता है कि वो कोमा से बाहर आएगा या नहीं, लेकिन मैं अपने तजर्बे की रोशनी में ये बता सकता हूँ कि ऐसे केसेस में मरीज अमूमन कोमा से बाहर नहीं आते, लेकिन कुछ केसेस में सालों लग जाते हैं और बहुत कम केसेस में मरीज जल्दी कोमा से बाहर आते हैं। बस आप दुआ करें, अल्लाह अपना करम करे। इतने में हिना भी आ गई और उसने डॉक्टर की बात सुन ली और वो डॉक्टर पर चीखी कि आप कैसे डॉक्टर हैं जो पहले नाउमीद करते हैं और फिर उम्मीद दिलाते हैं, वो भी ना होने के बराबर। डॉक्टर ने कहा, बेटा मैं डॉक्टर हूं, मैंने जो कहा अपने तजर्बे की बुनियाद पर कहा, बाकी जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। हिना ने डॉक्टर से कहा, मैं उनको देख सकती हूँ? हाँ, आप बिल्कुल उन्हें देख सकती हैं, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है। हिना भागते हुए रिकवरी रूम में गई, जहां तबरेज बेड पर साकित पड़ा हुआ था। उसके सर से लेकर आंखों तक पट्टी बंधी थी। वो तबरेज के पैरों में बैठी और उसके पैर पकड़कर रोने लगी। तबरेज उठो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मेरी जान, उठ जाओ।
तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। क्यों मैं तुम्हें तड़पाती रही, तुम्हारे प्यार को समझा ही नहीं, बस तुमसे नफरत करती रही। एक दफा भी नहीं सोचा कि तुम कितनी अजियत में रहे। सिर्फ मेरे मुंह से सुनना चाहते थे कि मैं बोलूं कि तबरेज मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, तुमसे बहुत प्यार करती हूं। तो सुन लो ना तबरेज, हिना तुम्हारी है, हमेशा तुम्हारी रहेगी। देखो अब तो मैंने बोल दिया ना। तबरेज उठ जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। उठ जाओ तबरेज। और धाड़े मार मार कर रोने लगी। इतने में फराज अंदर आया और उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, हौसला करो भाई, ठीक हो जाएगा। हिना धाड़ी, मैं सब जानती हूं, ये सब तुम्हारा किया धरा है। तो मुझे तबरेज से दूर करने के लिए तुमने हर हथकंडा आजमाया। आज तबरेज इस हालत में है तो मेरी और तुम्हारी वजह से है। तुम अगर मुझे इतना ना डराते तो शायद मैं इसके प्यार का जवाब प्यार से देती। मैं इसके प्यार को समझ ही ना सकी। मैं समझती रही वो मेरा दुश्मन है। हर वक्त मेरे कामों में खराबी निकालता रहता था और डांटता भी था। मुझे नहीं पता था कि ये उसका प्यार था। उसको जो जख्म पहले मिला था उसकी वजह से वो तल्ख हो गया था। काश मैं समझ पाती, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने अपने भाई के प्यार को सपोर्ट करने की बजाय साजिश करते रहे कि किसी तरह तबरेज मुझ में दिलचस्पी लेना छोड़ दे। लेकिन जब काम नहीं बना तो तुमने मुझे खौफजदा करना शुरू कर दिया। बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? फराज की आंखों में आंसू आ गए और बोला, हिना मैं अपने भाई के खिलाफ नहीं था, बस तुम मुझे अच्छी लगती थी। मैं तुमसे प्यार करता था लेकिन कभी बोल नहीं पाया। इसलिए मैं चाहता था तबरेज तुमसे दूर हो जाए तो मेरा रास्ता साफ हो जाए और मैं तुमसे प्यार का इजहार करूं। लेकिन सब गलत हो गया। तुम पर जो गोली चलाई गई थी वो मैंने चलवाई थी। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, सिर्फ तुम्हें डराना चाहता था। लेकिन तबरेज भाई बीच में आ गए और गोली उनके सर पर लग गई। मैं अपना गुनाह तस्लीम करूंगा और खुद गिरफ्तारी दूंगा, बस मेरा भाई ठीक हो जाए। तुम क्या खुद को पुलिस के हवाले करोगे? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगा। जलील इंसान, तुम इस हद तक गिर सकते हो? आरिफ खान बोला था, जो दरवाजे में खड़ा सब सुन रहा था। कोई अपने भाई के साथ भी ऐसा कर सकता है? बाबा मैं कसम खाता हूं मेरा कोई इरादा नहीं था तबरेज भाई को या हिना को नुकसान देने का। मैं सिर्फ डराना चाहता था। जो हुआ गलती से हुआ। आप बेशक मुझे पुलिस के हवाले कर दें, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरी नीयत पर शक ना करें। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। कौन किसको पुलिस के हवाले कर रहा है? तबरेज की दर्द भरी आवाज सुनकर सब उछल पड़े। कोई किसी को पुलिस के हवाले नहीं करेगा। मैंने सब सुन लिया है। मेरा भाई हमेशा हमारे साथ रहेगा। हिना भागती हुई तबरेज से लिपट गई। तबरेज मेरी जान, मेरी दुनिया, क्यों तुमने मेरी वजह से अपनी जान दांव पर लगा दी? बताओ क्यों? बोलो, तुमने एक पल को यह नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कौन मुझे हर बात पर डांटेगा? कौन ऊपर से सख्त और अंदर से मुझसे प्यार करेगा? तुम मेरे मुंह से जो सुनने के लिए तड़पते रहे वो अभी बोलती हूं सबके सामने। तबरेज, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बहुत प्यार करती हूं तुमसे। अगर आइंदा तुमने ऐसा कुछ किया तो अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी, क्योंकि अब तुम्हारी जान मेरी अमानत है, मेरी मलकियत है। तबरेज बोला, हिना तुमने आखिर इजहार कर दिया। ये सुनने के लिए मैं कितना तड़पा हूं तुम नहीं जानती। मैं जानती हूं तबरेज, तुम्हारी हर तकलीफ का एहसास हो गया है मुझे। बस मेरी गलती इतनी है कि मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई। मुझे माफ कर दो मेरी हर गलती के लिए, मेरी हर खता के लिए। अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। हिना फराज की तरफ देखकर बोली। जवाब में फराज आगे बढ़ा और तबरेज के पांव पकड़ लिए और रोते हुए बोला, भाई मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। अपने प्यार के आगे तुम्हारा प्यार नजर ही नहीं आया। लेकिन मैं आप लोगों को नुकसान नहीं देना चाहता था। जो हुआ गलती से हुआ। तबरेज ने फराज को कहा, हिना के सर पर हाथ रखो। आज से ये तुम्हारी बहन है। आरिफ खान नम आंखों से बोले, और आने वाले वक्त में तुम्हारी भाभी और मेरी बेटी है।
चांदनी रात की रोशनी में अस्पताल का सकूत मोहब्बत की रोशनी से भर गया। हिना और तबरेज़ की कहानी खौफ, नफरत, साजिश और टेस्ट के बाद एक खुशगवार अंजाम को पहुंची। फराज की साजिशें नाकाम हुई, लेकिन मोहब्बत और हौसले ने हर रुकावट को अबूर किया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।